ابو بکر کی عظمت کیا ہے؟ یہ وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے، اے میرے صاحب ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب غار میں اللہ کے نبی، غار ثور میں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے، ابو بکر کو ڈر ستانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر اگر پیر کی طرف آئے، یعنی جھک کر کے دیکھیں غار کی طرف تو ہم نظر آ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب ڈر ستانے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر ڈرتا کیوں ہے؟ میں دو ہوں اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہی ابو بکر کے بارے میں حضرت عائشہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں، آسمان میں جتنے تارے ہیں، کیا ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ کون سوال کرتی ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ بتائیے کہ آسمان میں جتنے بھی تارے ہیں ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ عائشہ اتنی نیکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بولیے بولتے رہیں گے تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ لوگ توجہ سے سنتے ہیں، ورنہ خاموش رہیں گے تو سمجھ لوں گا کہ شاید کھانا ہضم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق کی ہے۔ حضرت عائشہ مایوس ہو گئی۔ حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، لاڈلی ہے۔ حضرت عائشہ مایوس ہو گئی، مایوس ہو کر پوچھتی، یا رسول اللہ پھر ہمارے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں ہے؟ کیا ان کی نیکیاں کم ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق کی شان سنیے دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ حضرت عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں، اے عائشہ حضرت عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکیاں، حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کی تمام نیکیوں پر حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی بھاری ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کی تمام نیکیوں پر حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی بھاری ہے۔ اسی ابو بکر صدیق جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے اس کے بارے میں میں بول رہا ہوں، وہی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میلاد پڑھا یا میلاد سجایا یا میلاد کا انتظام کیا یا میلاد میں ایک درہم خرچ کیا، کون فرماتے ہیں؟ خلیفہ اول، جن کی ایک نیکیاں عمر فاروق کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے، وہی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما، جس نے میلاد پڑھنے میں، میلاد سجانے میں، میلاد کے اہتمام و انصرام کرنے میں اگر ایک درہم خرچ کیا، کانا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا دوست ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اسی نبی کی میلاد سجانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے ہم لوگوں نے، آپ آزاد نگر والوں نے اتنے انتظامات کیے، اتنے خرچ کیے، تو ایک مرتبہ پھر میں ان تمام آزاد نگر والوں سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میلاد کے لیے محفل سجائی ہے تو کچھ دیر آئیے، نبی کی بات سنیے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ جشن عید میلاد النبی، یہ بینر دیکھ رہے ہیں آپ، جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے یہ محفل سجائی گئی، یہ کمکمے، یہ ہائلوجن، یہ تمام سجاوٹ ہے۔ اسلامیہ، جشن عید، عید کسے کہتے ہیں؟ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی منانا۔ کیا ہوتا ہے؟ خوشی منانا۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی منانا۔ آج ہم اکٹھے ہیں، کیوں اکٹھے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آئے ہوئے 1500 سال ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 1500 سال ہو گئے۔ ہم نبی کا میلاد منانے کے لیے، نبی کی آمد پر خوشیاں منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگوں، جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فضل ملے، اللہ کا فضل ملے، اللہ کی نعمت ملے، اللہ کی طرف سے کوئی تمہیں رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ اس پر خوشیاں مناؤ۔ کس چیز پر؟ جب تمہیں اللہ کی کوئی نعمت ملے، جب اللہ کا کوئی فضل ملے، جب اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کا نزول ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اے مسلمانوں، اے اللہ کے فضل تلاش کرنے والوں، اے اللہ کی رحمت کے طلبگاروں، اے اللہ کی رحمت کے
तलाशी लो। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी फजल का, किसी रहमत का तुम्हारे ऊपर नुज़ूल हो तो तुम खुशियां मनाओ। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुज़ूल करता नेमतें हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया कि उस नेमत के हुसूल पर खुशी मनाओ। इस्लामिया सिर्फ ये हमें नहीं कहा गया कि हम खुशियां मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 6 और 7वें पारे में सूरह माइदा में फरमाता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, गौर से सुनिए दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, उनके चाहने वालों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पके पकाए खाने से भरा हुआ दस्तरखान हम पर नाजिल करे। इसने सवाल किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, उनके हवारियों ने क्या सवाल किया कि ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर आसमान से पके पकाए खाने से भरा हुआ दस्तरखान नाजिल फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर तुम मुसलमान हो तो ऐसा सवाल क्यों करती हो? अगर तुम मुसलमान हो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हो तो ऐसा सवाल क्यों करते हो? यकीनन इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। तो वह इस बात पर भी कादिर है कि आसमान से पके पकाए खाने से भरा हुआ दस्तरखान नाजिल फरमाए। हवारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि नाजिल हो। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कर रहा है, दुआ कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है, ए परवरदिगार आलम, तो आसमान से पके पकाए खाने से भरा हुआ दस्तरखान नाजिल फरमा। कौन कह रहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह, मेरे हवारी सवाल कर रहे हैं, उनको पके पकाए खानों से भरा हुआ दस्तरखान चाहिए, मौला तू नाजिल फरमा दे, मौला तू नाजिल फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपना हाथ बुलंद करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं? मौला नाजिल फरमा, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, मौला जिस दिन तू खाने से भरा हुआ दस्तरखान हम पर नाजिल करेगा, उतारेगा, मौला वो दिन हमारे लिए ईद का होगा। बोलिए, मौला वो हमारे लिए वो दिन तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मौला हमारे लिए, बल्कि कह रहे मौला हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए वो दिन ईद का होगा जिस दिन तू दस्तरखान नाजिल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दस्तरखान पके पकाए खाने से भरा हुआ नाजिल फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम मानने वालों ने उस दिन को ईद मनाया, यानी खुशी मनाई। क्या की? खुशी मनाई। अब गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए, एक मामूली सा दस्तरखान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले खुशी मना रहे हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मौला ये ईद का दिन है हमारे लिए भी, हमारे अगले के लिए भी, हमारे पिछले के लिए भी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, 12 रबीउल अव्वल को कोई दस्तरखान नाजिल नहीं हुआ, 12 रबीउल अव्वल को कोई आम नेमत नाजिल नहीं हुई, बल्कि 12 रबीउल अव्वल को तमाम कायनात का सरदार, तमाम नबियों का सरदार, तमाम रसूलों का सरदार, वजह तखलीक कायनात अल्लाह के नबी सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सबसे बड़ी रहमत और सबसे बड़ी नेमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को खुशियां मनाते हैं और ईद मनाते हैं। अब बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्यों खुशी मनाते हैं? हम खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई फजल नाजिल हो, कोई नेमत नाजिल हो, कोई रहमत
नाजिल हो तो उस दिन खुशी मना, तो उस नेमत के हुसूल पर खुशियां मनाओ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जब एक मामूली नेमत के हुसूल पर, मामूली फजल के हुसूल पर, मामूली रहमत के हुसूल पर अल्लाह खुशियां मनाने का हुक्म दे रहा है, तो 12 रबीउल अव्वल को हम सब के आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, मक्का वालों के लिए नहीं, अरब वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। इसलिए हम लोग खुशियां मनाते हैं, इसलिए हम लोग खुशियां मनाते हैं। हज़रात मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी किस वक्त तशरीफ लाए, किस माहौल में तशरीफ लाए, तवज्जो चाहता हूं दोस्तों। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक, तवज्जो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक तकरीबन कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए। कितने? कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले कोई भी ऐसा जमाना नहीं था, कोई भी ऐसा दौर नहीं था जो जमाना या दौर नबियों से खाली हो, जो जमाना या दौर नबियों से खाली हो। बल्कि पहले तो ऐसा हुआ करता था कि कभी कभी अलग अलग कबीले के अलग अलग नबी हुआ करते थे, कभी कभी एक ही वक्त में कई नबी हुआ करते थे। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उनको आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला ने उठा लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरमियान का अरसा, ये कितने साल का अरसा था? 1 साल, 2 साल, 100 साल का नहीं, तकरीबन 600 साल का अरसा गुजरा। कितने साल का? तकरीबन 600 साल का अरसा, जिस बीच कोई नबी नहीं। पहले एक एक जमाने में कई कई नबी, अलग अलग कबीलों के लिए नबी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद हमारे नबी के इस दुनिया में आने से पहले तकरीबन 600 साल का अरसा, इतना लंबा अरसा गुजरा जिसमें कोई नबी नहीं। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर पूर्ण होता गया, लोग गुमराह होते गए, लोग गुनाहों में मुलव्विस होते गए, लोग ये समझने लगे कि यही दुनिया सब कुछ है। और जो सबसे बड़ा गुनहगार हुआ करता था वो रश्क किया करता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। बेटियों को जिंदा दरगोर करना उनका मामूल था। अगर किसी का पति मर जाता, उस बेवा को उसके चीते के साथ जला दिया जाता था। बेवाओं की कोई कदर कीमत नहीं थी। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। यतीमों का हक लूटा जाता था। बच्चों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं था। गोया कि पूरी दुनिया में जुल्म बर्बरियत का दौरा था। हर तरफ जुल्म, हर तरफ गुनाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हर तरफ तो गुनाह का दौरा था, जब हर तरफ गुनाह का पहरा था, बेवाएं चीख रही थी, ए परवरदिगारे आलम, किसी को तो भेज कि हमारी इज्जत वापस आ जाए। यतीम चीख रहा था, मौला किसी को तो भेज कि हमारा हक ना हक तौर पर न खाया जाए। बच्चे चीख रहे थे, मौला किसी को तो भेज कि हमारे सर पर दस्ते शफकत रखे। बच्चियां चीख रही थी, मौला किसी को तो भेज कि हम जिंदा दरगोर होने से बच जाए। सारी दुनिया में मजलूम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मौला भेज किसी को। जब चीख अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंची, जब मजलूमों की पुकार अल्लाह की बारगाह में पहुंची, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया और 12 रबीउल अव्वल को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर ताजदारे दो जहां को इस
जमीन पर भेजा, ताजदारे दो जहां को इस जमीन पर भेजा। जब इस जमीन पर भेजा अल्लाह के नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, तो वही बेटियां जिनको जिंदा दफन कर दी जाती थी, अल्लाह के नबी के आने के बाद उन बेटियों को न सिर्फ बचाया गया, बल्कि अल्लाह के नबी ने ये पैगाम दिया कि हे लोगों, जिन बेटियों को तुम सहमत समझकर जिंदा दफन कर रहे हो, वो बेटियां सहमत नहीं, बाइस जुल्म नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हक बात है, बिल्कुल सच। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला। और सुने दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस माहौल में कि पूरी दुनिया में जुल्म व बर्बरियत का पहरा था, पूरी दुनिया में जुल्म ही जुल्म था, ऐसे माहौल में अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए और उन्हीं के बीच में अल्लाह के नबी ने अपना बचपना गुजारा, अपना लड़कपन गुजारा। तवज्जो के साथ सुनिए, अपना बचपना गुजारा, अपना लड़कपन गुजारा, जवानी गुजारी। जब 40 साल की उम्र हो गई, कितने साल की उम्र हो गई? 40 साल। 40 साल की उम्र हो गई। नबी की महफिल सजा रहे हैं, नबी का मिलाद मनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। नबी की उम्र जब 40 साल की हो जाती है, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए दोस्तों, जब 40 साल उम्र हो जाती है, अल्लाह के नबी मक्का वालों को एक पहाड़ की चोटी पर, एक पहाड़ के पास ले जाते हैं और उस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे चाहने वालों, जरा ये बताओ कि 40 साल का जमाना मैं तुम्हारे बीच गुजारा, बचपना तुम्हारे बीच गुजारा, लड़कपन तुम्हारे बीच, सिन्ने बुलुगत को तुम्हारे बीच पहुंचा, ए मेरे चाहने वालों, ये बताओ कि मैंने 40 साल का अरसा तुम्हारे बीच गुजारा, बताओ कि तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया, बताओ तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया। सब लोग, तमाम मक्का वाले एक जबान होकर कहने लगे, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, 40 साल का जमाना तूने हमारे बीच गुजारा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने आपको ये पाया कि आप कभी झूठ नहीं बोले। बेशक। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने पाया कि आप कभी झूठ नहीं बोले। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने पाया कि आप अमानत के ताजदार हैं। अगर आपको किसी ने अपनी अमानत सौंपी है तो आपने वक्त पर उसकी अमानत को लौटाई है। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने आपके अंदर सच्चाई पाई है, हमने आपके अंदर अदल इंसाफ पाया है, हमने आपके अंदर वो तमाम खूबियाँ जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो तमाम खूबियाँ आपके अंदर मौजूद है, हम लोगों ने पाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, अगर मुझे तुम लोग सच्चे मानते हो तो क्या तुम मुझ पर यकीन भी करते हो? तुम लोग, तमाम लोगों ने कहा कि हाँ, हम यकीन भी करते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर यकीन करते हो तो ज़रा ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक फौज निकल कर तुम पर हमला आवर होने वाली है, तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या ए मक्का वालों तुम इस बात का यकीन करोगे? गौर से सुनिए दोस्तों, अल्लाह के नबी किस माहौल में आए। तमाम लोगों ने कहा कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप कहेंगे कि इस पहाड़ के पीछे से फौज निकलकर आप पर हमला करने वाली है तो हम लोग सब यकीन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला है। हम सब ने आपको सच ही बोलते हुए देखा है और पाया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों, अगर इतना यकीन है तो सुनो सुनो, जिस खालिक के कायनात ने हमें पैदा किया है, जिस खालिक के कायनात ने इस पूरी कायनात को पैदा किया है, जिस खालिक के कायनात ने शम्सो कमर को पैदा किया है, जिस खालिक के कायनात ने इस कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है, वो एक है। पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना कहना था। वही लोग जो आपको अमीन